Welcome students, we are here with a new topic which we call as gel electrophoresis, which is one of the component of biotechnology and considered as an essential procedure and process for the separation of DNA. Now see, gel electrophoresis, this is our third lecture probably. Gel electrophoresis में हमारी पहली बात ये होती है, ये एक टेक्निक है, एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है, और इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली सेपरेट करते हैं डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को. We are separating in gel electrophoresis. We are separating DNA, RNA, or we can separate the proteins on the basis of size. ये जरा important है. On the basis of size. Definition is not complete until and unless I will not say under the influence of electric field. Under the influence of electric field. Now this is a complete definition. Gel electrophoresis involves the movement, involves the separation. या तो हम separate करते हैं DNA को, या तो separate करेंगे RNA को, या हम separate करेंगे proteins को. लेकिन किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज. इसका मतलब साइज का एक ग्रेडियंट होगा. साइज के हिसाब से हम छोटा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा. साइज के हिसाब से हम डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, आरएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे, प्रोटीन्स को हम सेपरेट करेंगे. कहां पे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें चाहिए एक चीज जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है. This technique was given by Tiselius in the year 1937. We call it as electrode because we are doing it under the influence of electric field. Phoresis. Phoresis means separation. Electrophoresis. जब separation होगी under electric field. लेकिन इसमें हमें और एक चीज का इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं gel. So we call it as gel electrophoresis. Right. इस प्रोसीजर को समझने के लिए हमें प्रोसीजर इसका पूरा हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए. इसको आपको ये आप समझ सकते हैं. सबसे पहली बात, why we are aiming at doing this type of procedure. क्या जरूरत है हमें ये प्रोसीजर करने की? जरा थोड़ा सा बैक ड्रॉप में जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए. आप देखिए, हमने पढ़ा था कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया और इनके इस्तेमाल से हमने इस डीएनए के हिस्से कर दिए. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक डीएनए था और हम चाहते थे, हमने जब मॉलिक्यूलर सीजर्स को डिस्कवर किया, जब हमने कैंची को डिस्कवर किया, तो हमने इस डीएनए के फ्रैगमेंट्स किए, कहीं यही, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे. लेकिन ये जो फ्रैगमेंट्स हुए, ये हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. These fragments were carried out by the help of restriction enzymes. Restriction enzymes को यूज करने के बाद हमने इस डीएनए के हिस्से कर दिए, क्योंकि आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है एक डीएनए को एट ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो स्पेसिफिक होती थी इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए. सपोज अगर मैंने ECOR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया है, तो इसकी सीक्वेंस है GAATTC. इसका मतलब यहाँ कट लग गया है, यहाँ GAATTC होगा, यहाँ लग गया, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा. लेकिन डीएनए में सिर्फ एक ही जगह GAATTC नहीं होगा. इट विल बी रिपीटेड टाइम एंड अगेन. इट मे बी हियर, इट मे बी समवेयर, some distance apart, maybe some another distance apart. So this way you will find GAATTC in the DNA circulating at different levels, and we are using the restriction enzymes to cut these GAATTCs, and therefore we will get not one fragment of the DNA, we will be getting more fragments of the DNA. But basically हम चाहते क्या है, हमारे पास requirement है एक gene of interest की. We require a gene of interest. For example, I will tell you the gene of interest. The gene of interest is here. For example, मेरा जो gene of interest है वो इसमें है, इस वाले सेगमेंट में. तो मैंने सेगमेंट्स तो बनाए, मैंने फ्रेगमेंट्स तो बनाए. This is one fragment, this is one fragment, this is the another fragment, and this is the another fragment. I have made the fragments, but by means of restriction enzymes,
but my gene of interest rests in this fragment. I am not interested in this, I am not interested in this, but I am interested in this. क्योंकि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन को मैंने ज्वाइन करना है किसी दूसरे के डीएनए के साथ और रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, वो जीन तो इस सेगमेंट में है, इस फ्रेगमेंट में है। मुझे तलाश इस फ्रेगमेंट की है, मुझे इसकी नहीं और इसकी नहीं है। मैं चाहता हूं आई शुड गेट दिस फ्रेगमेंट फॉर मेकिंग अ रिकम्बिनेंट डीएनए। तो देयरफॉर एक चीज मैंडेटरी बन गया, जरूरी बन गया कि मुझे इस डीएनए को अब अलाइन करना पड़ेगा, अब मुझे इस डीएनए को सेपरेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेगमेंट्स। ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं अपना फ्रेगमेंट ढूंढूंगा जिस फ्रेगमेंट में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसी टेक्निक के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? इलेक्ट्रोफोरेसिस की। देन सी द टेक्निक, दैट इज द ये इसका एम है इलेक्ट्रोफोरेसिस का। दूसरी बात टेक्निक क्या है? सबसे पहले हम कहते हैं gel electrophoresis में we separate the DNA, we separate the RNA, we separate the protein, and this separation of the DNA, RNA, protein is being made under the influence of electric field, and depending upon the size of DNA it will migrate. See, सबसे पहली बात जो gel electrophoresis की है वो ये है कि हम gel electrophoresis में माइग्रेशन कराते हैं, migration of segments of DNA, and on the basis of size and under electric field, now the question is हम माइग्रेट करते हैं डीएनए को। डीएनए का माइग्रेशन हो सकता है, दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड हो सकता है और दूसरा नेगेटिवली चार्जड हो सकता है। पॉजिटिवली चार्जड को हम एज यूजुअल एनोड बोलते हैं और नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड। अगर आप डीएनए का चार्ज देखेंगे तो द चार्ज ऑफ डीएनए इज नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए, अगर डीएनए नेगेटिव है क्या ये माइग्रेट करेगा एनोड की ओर की कैथोड की ओर? Obviously the negative will move towards the positive. तो डीएनए का अट्रैक्शन, डीएनए का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट होगा किधर की ओर? एनोड की ओर। सो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोड्स डेवलप करूंगा, अगर मैंने इसको इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए तो जरूरी सी बात है डीएनए का फोर्सेस हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा और डीएनए मूव करेगा not towards the cathode but it will migrate towards the anode. Being negatively charged, it will get attracted towards the positive charged anode, right? Now in this experiment हम एक जेल यूज करते हैं। देखिए जेल जो है, जेल हमारे पास जो हम पे हमें डीएनए का एक्सट्रैक्शन करना हो तो जो जेल हम यूज करते हैं उसका नाम है Agarose gel electrophoresis. Here in this type of gel electrophoresis, अगर मुझे डीएनए का एक्सट्रैक्शन करना है तो मैं जो जेल यूज करता हूं उसका नाम है Agarose। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन करना है तो मेरा जो जेल होता है उसका नाम है polyacrylamide. We use the gel polyacrylamide. So जेल डिपेंड करता है, आप डीएनए का सेपरेशन चाहते हो तो एग्रोस का यूज कीजिए, आप प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप पॉलीएक्रिलामाइड को यूज कीजिए। ऑन दैट बेसिस हमने नाम भी दिया है Agarose gel electrophoresis. We can say it is for DNA. Polyacrylamide gel electrophoresis, that's for the protein. Anyways, we are not concerned with protein here. We are concerned with DNA क्योंकि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रोटीन का यूज नहीं बल्कि डीएनए का यूज करते हैं। We are concerned with DNA, and this DNA is for the separation of fragments of DNA we require a gel which is known as Agarose, और इस Agarose को हमने seaweeds we have obtained this Agarose from seaweeds, right? Now what is the procedure? I will tell you what is the procedure. देखिए सिंपल सी बात है, आप एक काम कीजिए, बड़ा छोटा सा प्रोसीजर है। हम व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहली बात, आप जरा इस जेल को लाइए। कौन सा जेल लगेगा डीएनए के लिए?
हमें लगेगा, अभी मैंने बताया आपको, हमें लगेगा कौन सा, एगारोस। यू गेट द एगारोस जेल, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड्स। एगारोस जेल पता है कैसे होती है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। दिस इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, हमको पाउडर फॉर्म में मिलता है। और हमको अगर इसका जेल बनाना है तो आप इसके साथ, इस पाउडर फॉर्म के साथ आप ऐड कीजिए, व्हाट, यू ऐड अ बफर सॉल्यूशन, यू पुट दिस पाउडर इन बफर सॉल्यूशन। आप इसको बफर सॉल्यूशन में डालिए तो आपको मिलेगा सेमी सॉलिड जेल। आपको जेल की लेयर मिलेगी सेमी सॉलिड, ये बिल्कुल सॉलिडिफाई होगा। हम जब इस पाउडर को बफर सॉल्यूशन में डालते हैं और थोड़ा सा हीट करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद आपको ये जेल जो पहले पाउडर था, अब कैसा है, अब जैसे ये बिल्कुल एक शीट जैसा बनेगा, ऐसे इट विल बी जस्ट लाइक ए शीट, ऐसे जेल होगा, शीट, सेमी सॉलिड टाइप का शीट होगा। तो इसमें हमने जेल की प्रिपरेशन की, पहली बात। दूसरी बात जो है, तो अब आपके पास इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपैरेटस होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का हमारे पास अपैरेटस होता है। हम क्या करते हैं, हम इस सेमी सॉलिड जेल को, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेमी सॉलिड जेल, ये हमारे पास फ्लूइड सेमी सॉलिड टाइप का जेल बन गया। हम ये जेल एग्रोस का बना है, एग्रोस का एक मेशी नेटवर्क होता है, ये मेशी नेटवर्क आपस में जुड़ा होता है और ये हमारे पास जेल का स्लैब बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जेल में कॉम्स का यूज करके, दिस इज ए कॉम, फॉर एग्जांपल दिस इज ए कॉम, ये कॉम होता है, इस कॉम का यूज करके हम इस जेल में पोर्स क्रिएट करेंगे। सपोज जैसे क्या कॉम, मैंने एक कॉम का यूज किया, जब आप जेल में, नरम वाले जेल में कॉम डालेंगे तो ये कॉम क्या है, इसमें डिप्रेशन होते हैं, इसमें डिप्रेशन होते हैं, इस कॉम में गड्ढे होते हैं। मैं इसको जेल स्लैब पे लगाता हूं ऐसे प्रेस करके, तो मैं देखता हूं यहाँ पे जो है इस जेल में जो है कॉम स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, इसमें जगह पैदा हो जाती है। तो ये कॉम स्पेसेस में इसमें इम्प्रिंट करने के बाद मैं इस कॉम को निकाल देता हूं। आई टेक दिस कॉम आउट एंड व्हाट यू विल गेट, नाउ यू विल गेट ए जेल, यू विल गेट, सपोज दिस इज आवर जेल, ये हमारा जेल है, इसमें आपने कॉम्स यूज किए, ये आपको इसमें स्पेसेस मिलेंगी, सपोज दीज आर द स्पेसेस जो आपको मिलेंगी, राइट, दिस इज ये पूरा बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ओके, ये आपने कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप इस जेल स्लैब को अब इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अपैरेटस में डालिए जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लगे। सपोज अब आप डालेंगे किसमें, इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अपैरेटस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सपोज दिस इलेक्ट्रोड is the positively charged, this is positively charged, तो ये anode हो गया, and this will be negatively charged, तो ये cathode हो गया। इसके दो टर्मिनल्स है, I use it as a cathode, I use it as a anode, ठीक है। तो मैंने इसको इसके साथ इसमें इस जेल स्लैब को उठाइए और डाल दीजिए किसमें, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो अपैरेटस है उसमें आप डाल दीजिए। तो उसको कनेक्ट कीजिए आप। अच्छा, उसको कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो इसको इन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, आप अपना सैंपल जो आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, आप वो सैंपल उठाइए और डाल दीजिए इस वाले में। सपोज आप डालिए इस वाले में। अगर आपके पास एक से ज्यादा सैंपल है तो आपने कितने यहाँ पे बॉक्सेस बनाने हैं, कितने डिप्रेशंस बनाने हैं कॉम से, इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर आपका एक सैंपल है डाल दीजिए एक ही, अगर दो है तो दो है, तीन है तो तीन में डाल दीजिए। लेकिन इस वाले में आप एक रेफरेंस डीएनए डाल दीजिए। यू यूज सम रेफरेंस डीएनए, आई मीन टू से ये डीएनए एक ऐसा सैंपल इसमें डालेंगे जिसमें हमको इसकी सीक्वेंस पता हो, इस डीएनए को हम रेफरेंस डीएनए या मार्कर डीएनए कहेंगे।
मार्कर डीएनए के सेगमेंट्स की सीक्वेंस हमको पता है। बेसिकली मुझे इनको जब मैं इसमें ये सैंपल डालूंगा तो मुझे कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन मैं इस मार्कर डीएनए से इसका करूंगा कि क्या ये इस मार्कर डीएनए का जो साइज है, मेरे पास एक साइज ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, बन जाएगा, ये साइज मुझे पता होगा, ये एक स्टैंडर्ड साइज होगा, तो मैं इसका साइज से कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करूंगा। तो दिस इज ए रेफरेंस डीएनए और मार्कर डीएनए जिसका डीएनए सीक्वेंस हमको मालूम है। ओके, इसके बाद अब आप रन कीजिए, अब इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कीजिए। उसके बाद जो ही अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डीएनए इन द polyacrylamide in the agarose gel will migrate, it will start migrating। ये आगे चलना शुरू करेगा और तब तक चलाते रहिए जब तक ये यहां तक नहीं पहुंचता। You run this until it will not reach here। अब डीएनए का माइग्रेशन कहां की ओर हो रहा है? We have anode, we have cathode। क्या डीएनए ऊपर की ओर मूव करेगा? Not at all, because डीएनए is negatively charged। ये मूव करेगा किधर की ओर? पॉजिटिवली चार्जड की ओर, एनोड की ओर। जितना भी यहाँ पे डीएनए है इट विल मूव टुवर्ड्स, जितने भी फ्रेगमेंट्स हमारे पास है वो मूव करेंगे यहाँ, जितने भी फ्रेगमेंट्स हमारे पास यहाँ है ये मूव करेंगे यहाँ, जितने यहाँ इट विल मूव हियर। तो डीएनए विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्जड एनोड, और लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जिन तो मूव कर रहा है, जिन के फ्रेगमेंट्स हमारे पास इसमें 10 फ्रेगमेंट्स मान लो है, 10 फ्रेगमेंट्स यहाँ पे जाएंगे, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। लेकिन 10 के 10 फ्रेगमेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक फ्रेगमेंट है, देखो कैसे इसमें 10 फ्रेगमेंट्स थे और ये 10 के 10 सेपरेट हो गए। कैसे? ये बड़ा मोटा फ्रेगमेंट था, ये यहाँ रह गया, ये थोड़ा सा ठीक था, ये यहाँ रह गया, ये थोड़ा सा छोटा था, ये यहाँ रह गया, ये इससे छोटा था, ये इससे छोटा था और ये इससे छोटा था। मतलब you will find the fragments have separated because they have moved towards the anode। They have separated on the basis of their size। जिसका जितना छोटा साइज वो ज्यादा नीचे आ गया और एग्रोस में दूर तक मूव चला गया, उसने एग्रोस में दूर तक मूव किया। एग्रोस आई टोल्ड यू इज अ नेटवर्क। तो जिसका साइज छोटा, under the influence of electric field it will move towards the anode, but its migration will be more as compared to a fragment who has a larger size of DNA। he will not move through this agarose network too far। तो ये आगे तक चला, ये पीछे चलेगा। तो हमें सेपरेशन मिल गया ना, हमें एक सेपरेशन मिल गया ना, हमें ये फ्रेगमेंट्स अलग अलग सेपरेट हो गए। ये छोटा फ्रेगमेंट, ये बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। तो ऑन दैट बेसिस हम जो है हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इसी तरह से जो हमारा रेफरेंस डीएनए भी है, तो रेफरेंस डीएनए मैंने दिखाया, रेफरेंस डीएनए का हमारे पास साइज पता होता है। सपोज ये 100 बेस पेयर साइज है, इसमें 200 बेस पेयर्स है, इसमें 300 बेस पेयर्स है, यहाँ 400 है, यहाँ 500 है, इसमें 600 है, इसमें 700 बेस पेयर्स है। ठीक है, ये हमारे पास साइज होता है। मुझे इसको देखना है तो मैं बोलूंगा 400 बेस पेयर का है, राइट? ये तो रेफरेंस डीएनए का है, इसका साइज मुझे ऑलरेडी पता है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इनको भी माइग्रेट कर रहा हूं और ये सारे के सारे माइग्रेट होते हैं लेकिन हमको दिखते नहीं, वी आर नॉट एबल टू सी देम। रीजन ये है, अभी जो डीएनए सेपरेट हुआ है ये भी सेपरेट हुआ है, ये भी हमें नहीं दिखता, रेफरेंस का भी, मार्कर का भी नहीं दिखता, सैंपल का भी नहीं दिखता। इसलिए क्योंकि डीएनए नीड्स टू गेट स्टेन। जब तक डीएनए को हम स्टेन नहीं करेंगे तब तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है, हमें क्या, लेकिन ये हो चुका है, हमें भी दिखा नहीं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस जेल को अब निकालेंगे। जब माइग्रेशन हो गया है, पूरा माइग्रेशन हो गया है, इस फिल्म को हम निकालेंगे और इसके बाद हम इसको स्टेन करेंगे with ethidium bromide। Then you stain it with ethidium bromide। ethidium bromide is used to stain the DNA। ये DNA को स्टेन करता है। तो इसको स्टेन करने के बाद you observe, this is the second point, you observe it under ultraviolet light और gel doll। हम इसको अल्ट्रावायलेट लाइट में देखते हैं और यूवी लाइट में आपको अब ऑरेंज कलर के बैंड्स मिलेंगे। यू विल फाइंड ऑरेंज कलर बैंड्स।
अब मैं तो यहाँ ऑरेंज नहीं बना रहा हूँ, चलिए मैं अब सैंपल मैंने ये इस कलर का लिया था तो मैं इसी का बताऊंगा, लेकिन आपको ऑरेंज कलर के बैंड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको ये वाला बैंड मिल गया, ये बैंड मिल गया आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा बैंड मिल गया आपको, यहाँ पे ऐसा बैंड मिल गया। इसी तरह से सपोज इसमें आपको ये वाला बैंड मिल गया, ठीक है, इसमें आपको ये वाला बैंड मिल गया, फॉर एग्जांपल ये वाला बैंड मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा वाला बैंड मिल गया। ओके, सिमिलरली इसमें भी आपको बैंड मिलेगा। सपोज हमको इसमें ये वाला बैंड मिल गया, फाइन, हमको यहाँ पे ये वाला बैंड मिल गया, सपोज हमको ये वाला बैंड मिल गया, ये वाला बैंड मिल गया। तो अगर मुझे पता करना है व्हाट इज द साइज ऑफ दिस बैंड, इसको रेफरेंस देने से, आप मार्कर देने से कंपेयर करो, ये बराबर इस पोजीशन पे है तो इसका साइज 100 बेस पेयर के आसपास है। तो इसका साइज देखिए, इसका साइज 400 बेस पेयर के आसपास है। इसका साइज देखिए, ये तो यहाँ पे तो है 600 और यहाँ पे 700 है, इट इज इन बिटवीन 600 एंड 700, तो इसका साइज लगभग कितना 650 होगा। दिस विल बी 650 बेस पेयर्स। सिमिलरली हमें इसका साइज देखना होगा, तो इसका साइज होगा 700 बेस पेयर्स, है ना। तो इसका साइज देखना होगा, इट इज बिटवीन 400 एंड 500, इसका साइज करीब 450 बेस पेयर्स होगा। तो ऑन दैट बेसिस यू कैन एस्टिमेट द साइज, कौन कितना फ्रेगमेंट पड़ा है। एंड you have to isolate, अब you have to isolate your gene of interest, याद रखिएगा बेसिक एम। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अंडर अल्ट्रावायलेट रेज, आपको बैंड्स मिले, और ये बैंड्स जो है ये ब्राइट ऑरेंज कलर के हैं। द बैंड्स विच यू आर गेटिंग आर ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स, bright orange color bands, and you can observe this under the ultraviolet light. And there is a process known as elution. Elution का मतलब है, अब इस बैंड को आप कट कीजिए जल के समेत, यू टेक द बैंड आउट, इस बैंड को आप बाहर निकालिए जल के समेत, उस टेक्निक को इल्यूशन कहते हैं। When we separate the band, when we separate a particular band from the gel, it is known as elution. And this technique, अब इस वाले फ्रेग, सपोज मुझे ये फ्रेग, इसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल माई जीन ऑफ इंटरेस्ट इज हियर, ये वाला बैंड, क्योंकि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस बैंड में आएगा जिसका बेस पेयर का साइज 650 के आसपास हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, आई विल टेक इट, आई विल मेक इल्यूशन, मैं इसको बाहर निकालूंगा, और बाहर निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस फ्रेगमेंट को जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस फ्रेगमेंट को जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको मैं जोड़ूंगा, किसके साथ, मैं इसको जोड़ूंगा दूसरे वेक्टर के डीएनए के साथ। और सपोज दिस इज ये वेक्टर का डीएनए था, और ये मेरा डीएनए जो है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। तो मैंने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डाला, और मैंने बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो इन दिस वेक्टर आई हैव अ जीन विच इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जो मैंने सेपरेट यहाँ पे किया। तो दिस वे हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज कर सकते हैं। अब एक बात इसमें याद रखिए, सपोज अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे मॉलिक्यूलर साइज का और डिस्टेंस माइग्रेटेड का। ऑन वन साइड वी विल टेक मॉलिक्यूलर साइज, ओके, और दूसरे साइड में हम लेंगे डिस्टेंस माइग्रेटेड। आप देखिए, आपको कुछ इस टाइप का कर्व मिलेगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊंगा तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। मतलब फॉर एग्जांपल इसका मॉलिक्यूलर साइज इतना है, मतलब इसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज, ये तो छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इसका मॉलिक्यूलर साइज सबसे बड़ा है। तो डिस्टेंस माइग्रेटेड नीचे देखिए बहुत कम, ये बहुत कम चला, जिसका ज्यादा साइज उतना वो आगे कम चला। यहाँ देखिए इसका साइज इसके मुकाबले में कम है, और ये काफी डिस्टेंस चला है। यहाँ देखिए इसका साइज सबसे छोटा है, सबसे छोटा साइज है, और इसने देखो कितनी डिस्टेंस माइग्रेट की है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखेंगे जो डिस्टेंस माइग्रेशन है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज। बेटर टू से, अगर मैं देखूंगा मूवमेंट ऑफ डीएनए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by log of number of bases, यानी
अगर आप देखेंगे movement of DNA in gel electrophoresis is inversely proportional to the log of number of bases. That means if we have a bigger DNA, it will be having large number of bases. और अगर ज्यादा बेसिस है तो मूवमेंट ऑफ डीएनए कम होगी, यानी ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा. और अगर हमारे पास बेसिस कम है तो मूवमेंट ऑफ डीएनए जो है ये ज्यादा होगा. It will migrate further and far. That's all about gel electrophoresis. Thank you for watching this video.